Good evening, everybody. Anybody able to hear me? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. We'll wait for some more people to come. Yes, sir. Yes, sir. So, how many of who are all working in goods already? Anybody working in goods? No. Okay. Anybody in ticket checking? Anybody in ticket checking? Any booking clerks? Anybody? Any ECRCs? Srinivaslu, what are you? Sir, I am actually station superintendent, sir. Oh, very nice. Operating. Where? Sir, Nidigundapalam, sir. Nirvatapalam. Okay. Very Yes, sir. nice. I am looking after the duties of goods also, sir. Actually, Ah. Nidigundapalam is a good state, sir. Oh, okay. Why goods staff is not posted there? Sir, Why? actually, recently only this is established, sir. This good state. Oh, okay. Very good. So it is nice that operating people also are interested in goods because see what happens is when you go as AOM, when you Yes, get sir. promoted as AOM, you will be taking decisions on these aspects, and you may be posted as ACM, or when you get promoted as DOM, you may be posted as DCM also. Yes, sir. Yes, sir. So at the end of your career, maybe 10 years, you will get IRTS, you will get conferred IRTS, and after that you may be posted as senior DCM or deputy CCM or something like that. So very important Yes, for sir. everybody, especially those in traffic. That means operating and commercial I'm talking about, to know about Yes, sir. goods. చాలా చాలా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అరే నేను స్టేషన్ మాస్టర్ కదా నాకు దానికి ఏం సంబంధం లేవు అని. కాకపోతే Sir, sir. ఒక ఆఫీసర్గా రిక్రూట్ అయినాక మనం వచ్చి ఏమి ఇచ్చామో పని అది చేసి కావాలా. అవును, sir. మీకేమైనా ఏసీఎంగా although there is nowadays they have separated operating and commercial officers also, still DCM and Yes, sir. DOM are interchangeable, so it is very important that Yes, that. sir. Okay. We'll wait for another 2-3 minutes. Let everybody join. Yes, sir. Yes, sir. Please. Ah, ఆహా, చేయాలంటున్నా. ఆ, నేను క్లాస్ శీఘ్రంగా ఫినిష్ చేస్తా కూడా. నేను క్లాస్ శీఘ్రంగా ఫినిష్ చేసేస్తాను. Anybody else wants to introduce themselves, what they are doing, where they are working? For 2 or 3 minutes, somebody can talk. Akshay Wankade, what are you doing? Sir, I'm RS2 reservation supervisor. Okay, that's very nice. Okay. So you are also interested to learn goods. I think I've seen you in 2 or 3 classes. Yes, sir, yes. You are aspiring to be ACM? Yes, absolutely. Okay. Only for him. Okay. That's nice to know. Okay. Hmm. Okay.
Anybody else? Anybody wants to tell about themselves? जितेंद्र, आप बताइए, आप क्या है? हेलो। हाँ जितेंद्र, टेल मैं मी। मैं चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। You are vigilance inspector. यस सर, फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। Oh, very good. Central Railway, Mumbai, that is headquarters, right? यस सर। Okay. अर्लियर आई एम कमर्शियल इंस्पेक्टर फ्रॉम मुंबई डिवीजन। Now, okay, okay. See, if you are in vigilance, then it's very important that you know the rules and other things, so that you see, many people don't know the rules. That's why they do wrong, not because they want to make money. Okay. So Okay. many of them Yes. commit mistakes because of ignorance, not because of any purposeful to cause revenue loss to the railway. That may very few people are thinking like that. Also, I am not saying no, but many of them commit mistakes because of ignorance. Yes. Not to make money, but just they don't know the rules, and that is causing loss of revenue to the railway. That means when you don't collect some siding charge or some undercharge or something, not aware of it, then that is also loss to the railways, right? So, Due to lack of knowledge, sir, I also observe some cases due to lack of knowledge. It is not a vigilance angle. Sometimes I also observe. yes, yes, It yes, is the that lack of knowledge of our employees. करेक्ट, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। बट कैसे देखा तो भी उसमें कुछ लॉस ऑफ रेवेन्यू रेलवे के लिए हो रहा है, इसके लिए उसको थोड़ा कम करना अच्छा ही है। बट वो उसमें कोई मेजर विजिलेंस एंगल नहीं हो, इसको ऑब्जर्व करना रहता है। हाँ, इसी के लिए है ना, जो रेफ्रेशर कोर्स है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर आजकल रेफ्रेशर कोर्स करता ही नहीं। और जो स्टाफ है, उस जो सीएमआई है या कुछ सुपरवाइजर्स है, उसका काम है थोड़ा जानकारी देना, जो इससे अंडर काम कर रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा जानकारी देना भी अच्छा होता है। मगर हमारा जो रेलवे का आजकल का जो ज़माना चल रहा है वो पूरा व्हाट्सएप में है, और सो एक दिन में करीबन 1000 पिंग्स आता है, और कोई भी टाइम नहीं रहता है ना देखने के लिए। हाँ, यही सर वही है। और मैं भी ये चीज अनुभव किया है कि सबको अपडेट होना बहुत जरूरी है। इवन हमें भी चेक करना है तो अपडेट ही रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और इसके लिए मैं आप किसी एम्प्लॉय को चार्ज करने से टाइम पे आपका जो रूल्स ठीक से आपको मालूम नहीं है, तो आपका जो केस है वो स्टैंड नहीं होता है ना। सो टेक्निकल इश्यू में भी गिर जाता, या कुछ इश्यू में वैसा गिर जाता। सो नहीं, वॉट एवर इट इज, द एंगल ऑफ विजिलेंस इज नॉट टू कैच समबडी, द एंगल ऑफ विजिलेंस इज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू and corruption. Preventing loss of revenue and corruption is the angle of vigilance, not to catch somebody. ये मन में नहीं है। मन में ये है कि जो लॉस गवर्नमेंट का है वो कम करना बस। और अवेयर हो जाए एम्प्लॉय तो बेटर हो। इससे मैं सोचता हूँ आज के समय बहुत कुछ चांसेस नहीं रहता, इतना सिस्टम ऑनलाइन है सर। हाँ, एग्जैक्टली। जितना सिस्टम ऑनलाइन आता है उतना भी अच्छा है ना। यस, अभी तो सारा गुड्स में वॉइस, पार्सल, पीएमएस, इवन हैंड एंड टर्मिनल फॉर टीटी चेकिंग स्टाफ। हाँ, बहुत सारा चीज है आजकल। मगर ये भी सोचो, आप जब एक आदमी को पकड़ता है, HHT है, और सीनियर डीसीएम ने बुला के बोलता है कमर्शियल कंट्रोल, आई एम वर्किंग इन कमर्शियल कंट्रोल फॉर नियरली 15 ईयर्स। सीनियर डीसीएम करके बुला के बोलता है, भाई मेरा दोस्त है वो जा रहा है, थोड़ा उसको यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए बोल होती है। तो हम बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस वैसे देता है, सीनियर डीसीएम देता है, सीनियर डीओएम देता है, डीआरएम देता है, सीसीएम भी देता है, और उसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं रहता। और बेचारा जो टीटी है उसको आप जब पकड़ जाता है ना, उसको कोई उसको ही हैज नो सिक्योरिटी, राइट? सो ही कैन नॉट डिफेंड। इस तरफ उसका ऑफिसर का भी बात सुनना है, और दूसरा तरफ आपका जो विजिलेंस का, ऑडिट का, उन सब का भी ध्यान में रखना। ये प्रैक्टिस रहता है सर, मॉडिफाइड इंटेंशन पता चल जाता है ऐसे लोग।
जो हाँ। इनोसेंट रहते हैं यही तो थोड़ा इसमें डिफरेंस करना रहता है, Correct. सेंस ऑफ Vigilance ह्यूमन। inspector should also exercise caution whenever they check. They should see whether the motive is there for making money or it is something else. है ना? If the motive is to make money, then it is definitely to be stopped. But if the motive is something else, then a lenient way should be taken. Counseling is more important to the staff rather than punishment. Yes, yes. Counseling and punishment are different. So anyway, okay, shall we start our class today? Everybody, good evening everybody. I'll start my class. Yes, sir. Please Yes, keep sir. your mics muted. Anything is there, you can unmute and you can speak. Yes. So good evening. Today we are going to deal about punitive charges. So what are punitive charges and what what are the modalities? I'll be sharing my screen right now. I'm sharing my screen. मेरा screen visible है? Anybody can say? Yes, sir. Okay. So now I will just open the PDF. See, what is the punitive charge for overloading? Punitive charge for overloading is the fine or penalty. Punitive means fine, penalty for wagons which are loaded more than the permissible carrying capacity. Every wagon is having a permissible carrying capacity, है ना? यदि आप एक ऑटो हायर करते हैं क्यों 3 आदमी लेके जाना तो 3 आदमी ही लेके जाना. यदि 4 आदमी उस ऑटो में बैठा तो वो ऑटो ड्राइवर का पूछेगा सर मेरा गाड़ी खराब होगा, 4 आदमी बैठे तो ज़्यादा लोड होगा इंजन के लिए, इसके लिए मुझे थोड़ा पैसे ज़्यादा चाहिए, है ना? मुझे थोड़ा पैसे ज़्यादा चाहिए बोलता है. इसके लिए ऐसे ये जो पेनल्टी चार्ज है वो पेनल्टी लेता है कस्टमर से. और पेनल्टी लेने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीवेमेंट. वेमेंट और रीवेमेंट दो चीज़ें है. वेमेंट होता है जो इनिशियल स्टेज में स्टेशन में जब लोडिंग होता है उसी टाइम में वेमेंट करना, या कहीं भी रास्ता में पहले बार वेमेंट करना. पहले बार वेमेंट करने के लिए बोलता है वेमेंट, और पहले बार वेमेंट करना वो बोलता है वेमेंट, और अगले बार सेकंड टाइम करने को रीवेमेंट बोलता है. वेमेंट तो बिल्कुल एवरी टाइम वेमेंट शुड बी डन, बिकॉज वेमेंट विल टेल यू how much of commodity is loaded and whether it will cause any damage to the rolling stock or the track or the safety. Anyway, wagons are loaded to the permissible carrying capacity only. We are getting the full revenue. यदि एक वैगन में 62 टन का कैपेसिटी है और सिर्फ 1 टन लोड किया तो भी हम 62 टन का चार्ज ले रहे हैं वैसा तो. सो इसमें कुछ लॉस नहीं है. मगर जो 62 टन का कैरिंग कैपेसिटी है उसमें हम यदि 64 टन कैरी किया उसका क्या फ़र्क पड़ता है? एनीबडी कैन से व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इफ वी कैरी मोर वेट इन अ वैगन? एनीबडी? What will be the implication if at all more weight is there in the wagon? Anybody can tell? Okay, see, when your wagon is loaded with more weight than what can be carried, then we will have a problem called as safety. वैगन का जो कैरिंग यदि ज़्यादा हुआ तो सेफ्टी का असर पड़ेगा. सेफ्टी का मतलब जब गाड़ी रास्ता पे है वो गिर जाएगा, या जो नीचे का बॉटम प्लेट है वो भी डैमेज होने का संभावना है. और ज़्यादा वेट एक वैगन का ऊपर डाला तो वो वेयर एंड टेयर क्या बोलता है, हर दिन का जो वेयर एंड टेयर है वो जैसे हम काम 8 घंटा हर दिन करना, बाकी 16 घंटा हम घर पे सोने के लिए इन सब को हम इस्तेमाल करना. यदि आप दिन में 12 घंटा या 14 घंटा काम किया तो आपका जो असर क्या होगा आपका हेल्थ का ऊपर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब गिर जाता है ना, ये सब उल्टा हो जाता है. So to prevent all that, we are telling that the wagons should be properly loaded. Now we will see what is reweightment of goods.
रीवेमेंट का मतलब है दोबारा वेमेंट करना, सेकेंड टाइम वेमेंट करना। ये सेकेंड टाइम वेमेंट क्यों कर रहे हैं? टू गार्ड अगेंस्ट वेमेंट एंड देयर बाय अवॉइड लीकेज ऑफ रेवेन्यू, टू गार्ड अगेंस्ट अंडर वेमेंट। वेमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, टू असेस लॉस करेक्टली इन केस ऑफ पिल्फर्ड गुड्स एंड अवॉइड एक्सैजरेटेड क्लेम्स कम करने के लिए भी हम रीवेमेंट करता है। When specific endorsement is made to revame the consignment, payment is done to collect undercharges. यदि विजिलेंस या ऑडिट या कुछ हायर अथॉरिटी ने हमको बोलता है कि ये रेक को, ये वैगन को रीवे करो, उसको तुरंत रीवे करना, क्योंकि उसको शक है, डाउट है कि ये इसमें कुछ वेमेंट का गलती है और कस्टमर ने वेमेंट का जितना वेमेंट करना उससे भी ज़्यादा वेमेंट किया है। Okay, now what is the procedure? Repayment of 10% of consignment should be done when packages are uniform size and 100% in case of irregular packages. यदि यूनिफॉर्म साइज का पैकेज है देन 10% करना, और इरेगुलर है तो 100% पूरा का पूरा रीपेमेंट करना डिलीवरी देने के पहले। The results of the repayment are recorded in the repayment register, unloading book, कनेक्टेड इनवॉइस, डिलीवरी बुक एंड मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स। ये जो रिपेमेंट है उसका जो डाटा है वो कहाँ लिखना है? इन सब में लिखना है। क्या है वो? रीपेमेंट रजिस्टर, एक रजिस्टर है मेंटेन करना, उसका नाम है रीपेमेंट रजिस्टर, उसमें लिखना। दूसरा है अनलोडिंग टैली बुक और अनलोडिंग बुक। तीसरा है कनेक्टेड इनवॉइसेस, मतलब वो जो रेलवे रिसीट है उसमें भी लिखना। डिलीवरी बुक, डिलीवरी बुक में क्यों लिखना? Delivery book is one of the most important books because it is in that book that we can. What is the importance of delivery book? Anybody can tell why is that delivery book is so important? किसी ने बता सकता क्यों डिलीवरी बुक इतना इंपॉर्टेंट है? Anybody? Okay, डिलीवरी बुक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पार्टी कुछ भी लिख सकता है, कस्टमर कुछ भी लिख सकता है ना। कस्टमर लिख सकता है कि ये जो हम वो पैकेजेस या वेट कितना हम डाला है वो ठीक है या नहीं, कम है या ज़्यादा है, वो पूरा का पूरा कस्टमर लिख सकता है और हम भी काउंटर रिमार्क्स लिख सकता है। सो डिलीवरी बुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें लिखना। और मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स वो आजकल नहीं है, वो पिछले था, अभी MPS नहीं है फॉइस आने के बाद। After payment of goods, weight is compared with the invoiced weight or weight recorded by the weighbridge station. पहले जहाँ पेमेंट किया उसको, या इनवॉइस्ड वेट जहाँ पहले वेब्रिज नहीं है वो इनवॉइस्ड वेट का सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड, इसका बारे में हम बात कर चुका है। ये जो सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड है या जो पहले वेब्रिज में वे किया है उसका मुताबिक, और अभी पेमेंट किया रीपेमेंट किया ना, उसका उन दोनों का फ़र्क क्या है, कितना डिफरेंस है, वो हम यहाँ से पता कर सकता है। Okay, now appreciable difference in weight resulting in loss of revenue is reported to DCM of the forwarding railway. यदि हम पेमेंट किया और 100 kg का बदला 150 kg, instead of 100 kg 150 kg is there. Anybody wanted to talk something? Okay, anybody? Okay, so appreciable difference, that means if the difference in weight is more, then we have to write to the divisional commercial manager of that railway. क्यों? क्योंकि वो जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है उसका ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी अपीलेट रूल्स DAR का मुताबिक कुछ एक्शन लेगा और ये नेक्स्ट टाइम नहीं होने का संभावना हो सकता है। The undercharges in respect of overweight should be collected before granting delivery of the consignment. वो जो रीपेमेंट है, रीपेमेंट करने का तुरंत बाद डिलीवरी देने का पहले जितना भी हो अंडर चार्जेस उसको पार्टी से हम कलेक्ट करना है। इफ रीपेमेंट इज लेस देन इनवॉइस्ड वेट, ओवर चार्ज में बी रिफंडेड बाय CCM।
इधर देखो फर्क है, अंडर चार्ज है तो स्टेशन मास्टर ही कलेक्ट करना, उधर ही कलेक्ट करना डिलीवरी देने के पहले। मगर ओवर चार्ज इसका मतलब है वो बुकिंग किया 100 केजी के लिए, आरआर में 100 केजी लिखा, मगर इधर पेमेंट करने का टाइम पे 80 किलो ही है। इसका मतलब है जो वेब्रिज पहले स्टेशन पे है वो खराब है, या गलती से क्लर्क ने लिखा है 100 किलो मगर वो लोडिंग किया है सिर्फ 80 किलो। उस टाइम को क्या बोलता है, उसको अंडर चार्ज, उसको ओवर चार्ज बोलता है। ओवर चार्ज को रिफंड करना पार्टी को। वो ओवर चार्ज कैसे रिफंड करेगा, स्टेशन मास्टर का पावर नहीं है, चीफ कमर्शियल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवे उनको पावर है, और ये लेटर कस्टमर ले लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट बाय द ओनर, ओनर ने कब रीपेमेंट के लिए पूछ सकता है, कस्टमर कब पूछ सकता है? कस्टमर पूछ सकता है रिक्वेस्ट इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन कंडीशन ऑफ द पैकेज और कंसाइनमेंट वारंट। इसका मतलब है यदि सील टूट गया या ओपन हुआ डोर या कुछ फ्लोर डैमेज हुआ और आपको शक है, व्हेन दे हैव अ डाउट दैट सम लॉस माइट हैव टेकन प्लेस फॉर द कस्टमर एंड द रेलवे staff are able to see it, only then we will accept. DCM permission is required for repayment. Prescribed repayment charges are collected. इधर देखो, यदि पार्टी repayment के लिए पूछता है, उससे ये जो repayment charges बोलता है वहाँ उससे पार्टी से रिकवरी करना है। Then repayment कब परमिट नहीं है? Repayment is not permitted when the wagons are received with seals intact and there is no evidence that the seals are tampered in transit. मतलब है जब गाड़ी वापस आ रहा है एक जगह से दूसरा जगह आने का टाइम पे, जब हम देख रहे हैं कि कुछ टैंपरिंग नहीं है सील से, सील को कुछ टैंपरिंग नहीं है और जितना वैगन्स आया उसमें एक भी सील का टूट गया नहीं, उस टाइम को रीपेमेंट परमिट नहीं करता। ओके, in case of consignments received in open wagons when there is no sign of tampering with the original packing, open wagon में कुछ सामान लेके गया तो उसको लॉक भी नहीं कुछ भी नहीं, हमारा रेलवे का शक आना कि कुछ यार्ड में कुछ थेफ्ट हुआ है, बाकी जो शक आया उसी टाइम को रीपेमेंट ओपन वैगन को करता है, नहीं तो नहीं करता। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग रीपेमेंट? Anybody can ask me, 5 minutes I'll give you. Anybody having doubts on repayment? हेलो सर। Yes. इसका परमिशन के लिए जैसे बताया आपने, रीपेमेंट की परमिशन डीसीएम देते हैं मेरे ख्याल से। एसएजी ग्रेड ऑफिसर सर नॉट डील डीआरओ में competent. Now here when you say DCM, it is always senior DCM. By our, see, when you say railway servant, it is any railway servant with this SOP. What is SOP? Schedule of power. हर एक आदमी को शेड्यूल ऑफ पावर है। इधर डीसीएम का मतलब रैंक डीसीएम का नहीं है और एसीएम का नहीं, सीएमआई वैसा नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप लिख सकता है। जी सर, ओके सर। Anybody else? Okay, now we will go for our main chapter which is punitive charges. So जैसे हम बताया गया punitive charge क्या है। punitive charge एक पेनाल्टी है और ओवरलोडिंग ऑफ द वैगन से के लिए ले रहा है। ये क्यों ले रहा है वो भी बताया गया मैं। ये जो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट होने का संभावना है, हमारा फ्यूल खर्च ज़्यादा होता है, जब वेमेंट ज़्यादा है तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा ही होता है। इन सब के लिए हम पार्टी से कुछ फाइन लेगा, वो फाइन है पेनल्टी चार्ज। ये रेलवे बोर्ड 23/3/2022 में एक सर्कुलर दिया, उसका मुताबिक आज का क्लास चलेगा। ये दो करेक्शन मेमोस है और चेंजेस है, वो आपका जो इंटरनेट में जाके देख सकता है। आज जो क्लासेस कर रहे हैं ये इसी का मुताबिक 23/3/2022 का जो सर्कुलर है उसका मुताबिक है। कुछ चेंजेस है तो आप इंटरनेट में जाके देख सकता है, मगर बेसिक फंडामेंटल्स क्या है वो ऐसा ही होगा, है ना। ओके, नाउ पेनल्टी चार्जेस आर कलेक्टेड व्हेन द कमोडिटीज आर ओवरलोडेड इन द वैगन। When the commodities are overloaded in the wagon, you collect punitive charge. Punitive charges are given in part 1 and 2 situation A and B schedule 1 and 2. इसमें
6 तरीका का है, पार्ट 1, पार्ट 2, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। ये सब क्या है हम आगे आगे देख सकते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब है क्या सिचुएशंस में ऐसा ऐसा देता है। यदि आपका पेट में दर्द है तो कुछ दवा देता है ना, सिर का दर्द है तो दूसरा दवा देता है, सबको एक ही दवा नहीं देता। ऐसा ही सिचुएशंस का मुताबिक आप ये फाइन पेनल्टी जो है उसको लेता है। इसका मतलब है क्या टाइप ऑफ वैगन है, कितना ओवरवेट है, कहाँ वेमेंट किया, इन सब मन में रख के आप पेनल्टी देता है। जैसे आप चाइल्ड विदाउट टिकट को अलग से पेनल्टी है, अडल्ट विदाउट टिकट को अलग पेनल्टी है, सीनियर सिटीजन विदाउट कंसेशन अलग पेनल्टी है, ऐसे ही इधर पेनल्टी का अलग का मेथोडोलॉजी है। ओके, पेनल्टी चार्जेस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसाइनी और एंडोर्सी। कौन पे कर सकता है? कंसाइनर जो गुड्स को बेच रहे, कंसाइनी जो गुड्स को ले रहे, या एंडोर्सी। एंडोर्सी का मतलब क्या है? ये एंडोर्सी है हमारा रेलवे रिसीट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। इसका मतलब है बैंक में भी जमा कर सकता या दूसरों का नाम को ट्रांसफर कर सकता है, वैसा टाइम पे एंडोर्सी, द पर्सन हु इज परमिटेड टू टेक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। ओके, पेनल्टी चार्जेस आर कलेक्टेड फॉर द एंटायर वेट लोडेड बियॉन्ड द पीसीसी फॉर द एंटायर डिस्टेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ डिटेक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुन लो। दोबारा बोलता हूं, पेनल्टी चार्जेस आर कलेक्टेड फॉर द एंटायर वेट लोडेड बियॉन्ड द परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉर द एंटायर डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन। इसका मतलब है यदि एक वैगन 1000 किलोमीटर के लिए गया है और वेमेंट किया है 800 किलोमीटर में, इसका मतलब नहीं है कि जो बाकी बचा 200 किलोमीटर सिर्फ उसको लिए लेता है। हाँ, वैसा नहीं है। और ऐसे भी नहीं है सिर्फ 800 किलोमीटर के लिए लेता है और 200 किलोमीटर को छोड़ देता, नहीं, दोनों गलत है। ये पूरा 1000 किलोमीटर को हम ये पेनल्टी चार्जेस लेना पड़ेगा। ओके, then we will go for the next class. Next point, penalty charges are not collected if the consignor carries out load adjustment at the originating station. ध्यान से सुन लो, दोबारा बोलता हूं, penalty charges are not collected if the consignor carries out load adjustment at the originating station. जहां लोडिंग हुआ उसी जगह आप पता करके पेमेंट करने के बाद तुरंत बाद कस्टमर ने बोलता है हाँ जी मुझे भी मालूम है कि 1 टन ज़्यादा है, 2 टन ज़्यादा है, मैं मेरा क्रेन से या आदमी से इसको नीचे उतरे दूंगा और टीक का जो वेट है उसको भेजूंगा। उस टाइम को, सिर्फ उस टाइम को उसको पेनल्टी नहीं देना चाहिए। ओके, नाउ लाइक आई टोल्ड यू, वी हैव शेड्यूल 1 and 2, सिचुएशन ए बी, पार्ट 1 and 2। अभी हम देख रहे शेड्यूल 1, सिचुएशन ए, पार्ट 1। शेड्यूल 1, सिचुएशन ए, पार्ट 1। ये क्या है? सिचुएशन ए, इफ द एग्रीगेटेड पेलोड, एग्रीगेटेड का मतलब टोटल पेलोड इन अ रेक डस नॉट एक्सीड द कंबाइंड परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक, पेनल्टी चार्जेस शैल बी लेविड एज अंडर। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेटेड पेलोड डस नॉट एक्सीड द कंबाइंड परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक, पेनल्टी चार्जेस एज अंडर। इसको मैं एक एक्सेल में आपको दिखाऊंगा, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। 10 मिनट में खत्म हो रहा है ये स्क्रीन, 10 मिनट का बाद नया आप इसी लिंक में आ जाइए। Okay, everybody is able to see my Excel? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us assume that we are having number of wagons. Okay, and then I am interpreting PCC. If the number of wagons is 58 and the PCC of each wagon is 62,
then we know that the aggregate or टोटल पीसीसी, आप बता सकते हैं टोटल पीसीसी, ये टोटल पीसीसी कितना होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैगन्स इनटू पीसीसी ऑफ ईच वैगन। ये 3596 होगा आपका एग्रीगेट और टोटल। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल देखूंगा। वैगन नंबर 1 2 3 है ना, ऐसा है ना। हमारा एग्जाम्पल को सिर्फ 14 वैगन्स लेता है क्योंकि आपको ठीक से पता होता है। ये होगा 868 होना। अभी इसका कितना है 62 ना, ये वेट, ये लोडेड वेट है ना, लोडेड वेट। हमें लोडेड वेट फर्स्ट वैगन में कितना होता है 62 होना है। ये 61 ही किया, 63 किया, 61 और 62, 63, 61, 62, 63, 64, 62, 62, 62, 60, 50। ओके, अभी इस ऐसा लोडिंग हुआ ये 14 वैगन को, ये है एक एक वैगन का वेट। अभी इसका टोटल किया तो कितना आता है, कितना आ रहा है, एक्चुअल टोटल वेट। अभी ये कितना है 857। अभी ये 857 और 868 क्या है ज़्यादा, 868 is more, is it not? So he can load up to 868, but the total of all these wagons is coming to 857. So this is a schedule 1 part 1 what we are reading now. If the aggregated payload in a rake does not exceed the combined permissible carrying capacity of a rake, ऐसा हुआ तो फाइन कैसे लेना, पार्ट 1 वैगन्स अदर देन बीसीएन बीसीसीडब्ल्यू इनको छोड़ के दूसरा वैगन में है तो यदि 1 टन को ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलोडिंग अप टू 1 टन नील, 1 पैसे भी लेता नहीं। बाय मोर देन 1 टन बट नॉट मोर देन 4 टन्स इफ द ओवरलोडिंग, okay, if the aggregated payload then for these wagons you can see here किस किस में लोड ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, बस है ना। इतना वैगन में जो ब्लू में है इतना वैगन में ओवरलोडिंग है। अंडरस्टूड? एनीबडी हैविंग अ डाउट हियर? The permissible carrying capacity is 62. In these wagons, we have got more weight, but still the aggregate weight is within the aggregate PCC. In such cases, up to 1 ton nil, 1 टन का ज्यादा हुआ तो nil, इसका मतलब इधर होगा nil और इधर भी nil, इधर भी nil, इधर भी nil। ओके, मगर by more than 1 ton but not more than 4 tons, then 2 times of the freight rate applicable to that commodity. Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of the permissible carrying and loading tolerance of 1 ton. इसका मतलब है जो punitive charges इसको लेना है, ये जो वैगन है, ये वैगन है ना, ये वैगन को अलग रंग देता है। ये जो वैगन है ये कितना ज़्यादा है 2 टन्स है ना, ये 2 टन्स ज़्यादा है। ये जो वैगन है ये 2 टन्स के लिए हम क्या लेता है 2 टाइम्स ऑफ द फ्रेट रेट अप्लीकेबल टू दैट कमोडिटी। हमको मालूम है एक एक कमोडिटी का हमारा फ्रेट चार्ज अलग होगा और इधर हम 2 टाइम्स ऑफ द फ्रेट रेट अप्लीकेबल टू द कमोडिटी लेता है
Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess. कितना एक्सेस किया? 2 टन एक्सेस किया. इन 2 टन को हम फाइन डालता है. कितना फाइन डालता है? 2 टाइम्स डालता है. यदि 4 टन का भी ज्यादा हो, आप इधर समझो कि ये वैगन में ये वैगन, इस वैगन को समझो कि हम 68 टन्स है. उस टाइम भी ये 863 होगा. इसका मतलब 868 का कम ही है ना. इधर 863 हो गया, उस टाइम भी ये कम है. मगर ये जो वेट है ये कितना ज्यादा हो गया? इसको कितना ज्यादा हो गया, कोई बता सकता है? 5 टन. हाँ, 5 टन्स ज्यादा हो गया है ना. ये जो 5 टन्स है इसको कितना चार्ज करना? 2.5 times of the freight rate applicable to that commodity चार्ज करना. For the weight exceeding PCC up to 1 ton, normal freight at the rate applicable shall be recovered and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity except with PCC and loading tolerance of 1 ton. यहाँ तक कोई शक है? Anybody having any doubt in this particular schedule 1 part 1? You see the Excel. So here it will be nil. Here it is 2 tons. For these 2 tons you are calculating 2 times 2 tons into 64 tons. Okay, and here it is 2.5 times into उसके नीचे सर. सॉरी, इसको नीचे ना. हाँ, 2.5 times into 68 tons है ना. ये होता है फाइन. ये एनीबडी इज हैविंग ए डाउट रिगार्ड? इसमें कुछ भी नहीं, नील. जैसे 1 टन का है तो अप टू 1 टन, 1 टन का है तो माफी, परवाह नहीं. क्यों माफी? फ्री. क्यों माफी? क्योंकि ये हमारा 868 का अंदर है ना. हमारा जो टोटल एग्रीगेट पेमेंट उसका अंदर है. अभी इसको ज्यादा हो तो क्या करना, मैं दूसरा एक्सेल में बताता हूं. अभी इधर तक कुछ शक है? एनी डाउट? ओके. सो सेकंड पार्ट, फॉर BCN HL BCCW wagons we have told about other than these wagons. Here now we are talking about these type of wagons BCN HL. ये देखो इधर थोड़ा फर्क है. आधा टन तक if the weight of the commodity exceeds the permission, ये कुछ गलत हुआ है इधर. 1 मिनट. हाँ, अप टू हाफ ए टन नील. ये क्रॉस करो. अप टू हाफ ए टन नील. मोर देन हाफ ए टन बट मोर देन 3.5 tons then 2 times the freight rate. मोर देन 3.5 tons 2.5 times. इसका मतलब इधर जो नॉन BCN HL का है ये इधर है नॉन BCN HL एटसेट्रा. ओके. यदि हम इसको हम हाइड करके हम इधर लेगा वही सवाल BCN HL वैगन में, BCN HL टाइप. ये होगा पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या होगा? 1 2 3 4 वैसे ही वैगन का नंबर लेता हूं मैं. फोर्टीन तक लेगा और इसी एग्जाम्पल लेगा हम, है ना. इसी एग्जाम्पल में ऐसा ही करा तो क्या होता है?
So didn't get sound. Okay. We'll wait for 1 minute for everybody to join. Am I audible? Am I audible? Screen is visible? Visible sir, audible sir. Thank you. ओके, शैल वी स्टार्ट? या 1 मिनट और दूंगा, 1 मिनट और दूंगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा देरी में आ सकता है. आई विल वेट फॉर सम मोर, just for 1 minute we'll wait. Our own colleagues are there in the group, so they may miss it out. ओके, सो वेलकम बैक अगेन. सो यदि हम देख रहे हैं पार्ट 2 BCNHL टाइप का, ऐसा हुआ तो कैसा. इसमें भी देख सकता है ये जो 865 है टोटल, हम देखा है इधर 865 है और ये 868 का है. एग्रीगेट का भी अंदर है, एग्रीगेट का जो वेट है वो उसका ही अंदर है, मगर ये वेमेंट है ऐसा. उस टाइम को क्या करना, हम इधर क्या बोल रहे, अप टू हाफ ए टन नील, आधा टन का ज़्यादा है तो नील, 62.5 है तो नील. ओके, वेयर एवर 62.5 है उसको नील होता है. There will be no penalty charge if it is 62.5. Okay, then more than half a ton, but not more than 3.5 tons. 3.5 का अंदर, इसका मतलब है 62 इज इक्वल टू 62 प्लस 3.5, 65.5 इसका अंदर, 62 का ज़्यादा मगर 65.5 का अंदर है तो क्या करना है, 2 times द फ्रेट रेट अप्लीकेबल टू द कमोडिटी. इसमें कितना है वैसा, ये है एक, है ना, ये है एक बंदा तो इधर आ गया और ये भी आ गया और 65.5 ये भी आ गया और ये वाला भी आ गया इधर, है ना. इन जो येलो का है इसको कितना लेना हम, 2 times इंटू 63.5. ओके, 2 times इंटू 63.5 टन्स. और इधर वैसा ही हमें इसको कॉपी करके इधर डालता हूँ, जहां जहां येलो है वहां सिक्सटी एट वाला में सर ज्यादा होगा ना, 68 वाला ज़्यादा हो गया, है ना. ये जो इसमें
जो है ये होता है इंटू 63 टन्स, ऐसा होता है बस, है ना। ये क्या है 64.5 होता है और इसको 64 होता है ना। ये है फंडा। इसका दो गुण होता है। यदि ये 65.5 का भी ज़्यादा हो, ये रेड में है ना, उसको हम कितना चार्ज करना, ये वैगन को मोर देन 3.5 टन्स, 2.5 टाइम्स ऑफ द फ्रेट रेट एप्लीकेबल टू दैट कमोडिटी। इसको हम करेगा ये वाला, ये बंदा को 2.5 टाइम्स इंटू 68 टन्स। Okay, so this is for BCN BCNHL type. For non BCN BCNHL type, it will be this way. Okay, so I have shown you both of them. This is, ये जो non BCNHL है ये पार्ट 1 होगा, और इसको हाइड करके हम जो ये देखूंगा BCLHL में, इसमें फंडा ऐसा होगा। ये बहुत छोटा फर्क है मगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मन में रखना। ये जो पार्ट 1 है, other than BCNHL, up to 1 ton nil, more than 1 ton but up to 4 tons 2 times, more than 4 tons 2.5 times। इधर क्या किया BCN वैगन्स HL वैगन्स में, उसमें एक अप टू हाफ टन, आधा टन से शुरू करता है। आधा टन का ज़्यादा हुआ तो भी नील है, हाफ टन का ज़्यादा बट नॉट मोर देन 3.5 टन्स 2 टाइम्स होता है। मोर देन 3.5 टन्स डिफरेंस हुआ तो 2.5 टाइम्स चार्ज लेता है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 सिचुएशन, ये शेड्यूल 1। अभी कंटेनर्स को, फॉर कंटेनर ट्रैफिक ये जो पहले पढ़ा है वही होगा। नॉन BCNHL को क्या है, वही रूल है ना, सेम रूल। अप टू 1 टन नील, मोर देन 1 टन बट नॉट मोर देन 4 टन्स 2 टाइम्स, मोर देन 4 टन्स 2.5 टाइम्स। ये जो PDF है मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूं, दोबारा भी शेयर करूंगा मैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू सिचुएशन बी। इन सिचुएशन बी, इफ द एग्रीगेटेड पेलोड एक्सीड्स द कंबाइंड कैरिंग कैपेसिटी, इफ, ध्यान से सुन लो, इफ द एग्रीगेटेड पेलोड exceeds the combined carrying capacity। अभी उसका बारे में जानकारी हम देगा। Okay, so we will take one more Excel here. We will hide all these people. For now we will hide all these people, and we will take, if the aggregated PCC 868 and the actual weight is say 890। ओके, यदि आप इधर 890 हुआ तो क्या करना। ओके, सो लेट अस टेक ऑन एग्जांपल एंड सी। आई विल अनहाइड इट। आई विल टेक द सेम नॉन BCNHL। नाउ वी विल इंक्रीज द वेट्स हियर। वी विल इंक्रीज इट टू 62, 64, then 64 here, then 64 here। we will remove all the coloring। then we will remove all this। we will make this 64, then we will make this also 64। अभी ये कितना, अभी ये कितना हुआ, 889 हुआ है ना। this 889, is it more than this or less than this? The aggregate is 868, we are having 889 quintals here, I mean tons, so this is more than this। okay, so in this case how to charge, वैसे जब पहले हम देखा है वैसे ही इधर भी ब्रेकेज किया पार्ट 1 में। अदर देन BCN BCCW इन छोड़ के इधर अप टू 1 टन नील हुआ, अप टू 1 टन नील। इसका मतलब इधर नील है, इधर भी नील है, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया, और इधर नील, 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 है ना।
इन सबको नील है क्योंकि 62 प्लस 1 63 का अंदर है, मगर मोर देन 1 टन बट नॉट मोर देन 4 टन, 1 टन से 4 टन का ज्यादा, इसका मतलब है 62 इज इक्वल टू 62 प्लस 4 इज इक्वल टू 62 प्लस 4 66 का अंदर है, तो ये हो गया, एक बंदा हो गया इधर, और ये दो हो गया, और ये भी हो गया। 66 का अंदर कहाँ है, ये दोनों भी हो गया, है ना। इन सबको जो येलो में है हम कितना चार्ज करना, इधर देखो 3 टाइम्स चार्ज करना, ज्यादा फाइन होगा कितना, 3 टाइम्स, सॉरी इसको नील है इधर, 3 इंटू 64 टन, 3 इंटू 64 टन, 3 इंटू 64 टन, और इधर भी 3 इंटू 64 टन। ये 3 क्या होगा, 3 टाइम्स द फ्रेट रेट फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, 3 इंटू इधर भी 64 टन और 3 इंटू 64 टन। ओके, इतना होगा फाइन। मगर ये जो एक बंदा है वो 68 का है, वो पूरा रेड में चला गया, उसको कितना चार्ज करना हम, मोर देन 4 टन्स, तो 4 टाइम्स द अप्लीकेबल फ्रेट रेट फॉर दैट कमोडिटी। इसको हम 4 टाइम्स करना, 4 इंटू 68 टन्स। ये होगा चार्जिंग नॉन BCNHL वैगन को जब ये ओवरलोडिंग होता है और एग्रीगेटेड पेलोड कंबाइंड PCC से भी ज़्यादा होता है। फर्क रखो, ये 889 हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, ये एग्रीगेट का भी ज़्यादा हुआ, इसके लिए हम ऐसे चार्ज करता है। ओके, एनीबडी हैविंग ए डाउट टिल नाउ? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर 2-3 बार आप पढ़ा तो आपको मन में अच्छा आ जाता। एनीबडी हैविंग ए डाउट हियर? एवरीबडी अंडरस्टूड? Anybody has not understood? Okay. Next situation. ये जो पार्ट 1 हम देखा है नॉन BCNHL का, और अभी देखूंगा BCNHL को। ये BCNHL को जैसे हम दोबारा पार्ट 1 में देखा वैसा ही आप मन में रखो। आधा टन के लिए नील है, मोर देन हाफ टन बट नॉट मोर देन 3.5 टन, त्रिगुण होगा 3 टाइम्स, मोर देन हाफ ए टन, मोर देन 3.5 टन है तो 4 टाइम्स द फ्रेट रेट होगा। ये कब होगा, ये कब होगा, वो होगा जब एग्रीगेटेड पेलोड इन ए रेक एक्सीड्स द कंबाइंड PCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ये एग्रीगेट 868 होगा। ये एग्रीगेट कैसा मिला हमको, ये 14 वैगन्स है, PCC 16 है, 62 है एक वैगन को, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको 868 मिला। ये 868 बेंचमार्क होगा। यदि ये बेंचमार्क का अंदर वेमेंट है या उसका भी ज़्यादा वेमेंट है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ये एक एक वैगन का फाइन लेने का तरीका। ओके, सो फॉर वैगन्स अदर देन BCNHL BCCW अप टू 1 टन नील, अप टू मोर देन 1 टन बट नॉट मोर देन 4 टन्स को 3 टाइम्स होगा, और मोर देन 3 टन्स को 4 टाइम्स ऑफ द फ्रेट रेट कमोडिटी चार्ज करता है ना। हम देखा है जो 2 और ये नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट 3 कंटेनर ट्रैफिक। कंटेनर ट्रैफिक को इफ द परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी इज aggregate permissible carrying capacity is breached more than, then for container traffic also it will be the same like for non BCNHL wagon। ये जो है टेबल वही इधर भी हम लागू कर सकता है ना, कंटेनर ट्रेन भी। अभी हम ये देखा है, यहाँ तक कुछ डाउट है आपको बताना है। सी वी फिनिश दिस punitive overloading।
punitive charges. I have showed you this thing. You please tell me any doubts you are having. You can take 10 minutes of your time. You can ask doubts if you are having. आपका पास ये नोट्स है या नहीं? आपका पास ये पूरा नोट्स हम भेजा है, आपका पास है? किसका पास नहीं है नोट्स? Who is not having these notes? मेरे पास नहीं है सर, आई डोंट हैव। क्यों, आपका वो ग्रुप में नहीं है? मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। अभी ज्वाइन किया? अच्छा, राइट। मैं अभी भेजता हूँ, दोबारा भेजता हूँ, है ना? आप उसमें देख लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Anybody having any doubts? Anybody having any doubts? Please ask. This class is for doubts. If you have a doubt, you please ask. Anybody can ask a doubt. सर एक चीज पूछना था। हाँ, बताइए। जैसे इसमें इंटायर वेट की बात करते हैं, तो इंटायर वेट मतलब एग्रीगेट वेट टोटल जो होगा वो, या पर्टिकुलर वैगन का वेट? वैगन का वेट क्यों? अरे इट इज ऑब्वियसली वैगन का वेट, क्योंकि इधर देखा तो एग्रीगेट का अंदर ही है। किसका कैसे चार्ज करता आप? इधर देखो, सिचुएशन 1 में एग्रीगेटेड पेलोड डस नॉट एक्सीड कंबाइंड, इसमें कैसे चार्ज करता? ये 2 टाइम्स कहां से डालता? किसको डालता? वैगन को ही ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ठीक ठीक। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर, यस सर। हाँ, बहुत आसान है। हर एक वैगन को चार्ज करना है जितना उसका कैरिंग कैपेसिटी है उसका मुताबिक। अभी हम भेजा। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज टास्क। हु इज इट? आंसर चार्जेबल टोटल एक रेक का चार्जेबल वेट जो है वो ज्यादा रहे तो सिचुएशन बी में आता ना सर? सिचुएशन बी में बात करेंगे तो ये जो एग्रीगेटेड परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा हुआ तो सिचुएशन 1 में क्या देखा? सिचुएशन 1 में ये 850 होगा या ये 867 भी हो सकता है। एग्रीगेटेड टोटल वेट 867, मगर परमिसिबल एग्रीगेट 868। इसमें सिचुएशन ये होता है। सिचुएशन बी में 868 का भी ऊपर होता 890 होता, 900 होता, या 869 भी होता। 869 भी सिचुएशन बी में आ जाता। ये सिचुएशन ए और सिचुएशन बी का अलग है। इफ द एग्रीगेटेड पेलोड डस नॉट एक्सीड कंबाइंड पैरिंग कैपेसिटी, ये सिचुएशन ये है। सिचुएशन बी क्या होगा? इफ द एग्रीगेटेड पेलोड एक्सीड्स, इधर एक फर्क है, एक्सीड डस नॉट एक्सीड सिचुएशन ए, एक्सीड सिचुएशन बी। ओके ओके। आपको इसको देखा तो आपको मालूम है कि आगे से आगे आप देखेंगे कि फाइन ज्यादा बढ़ते हो रहा है ना? जब आपका जो गलत किया है वो ज्यादा होता है। जितेंद्र सर, हाउ टू डिटेक्ट ओवरलोडिंग इन वैगन एट सोर्स स्टेशन? स्टोर स्टेशन में वैगन में ओवरवेट आप वेमेंट करके पता कर सकता है, या बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस है तो आपका जो वैगन का नीचे जो स्प्रिंग्स है ना, स्प्रिंग्स को देख के भी टीएक्सआर वालों को पता होता है कि वेमेंट ज़्यादा है। आंख से देखने से इट्स नॉट द करेक्ट मेथड टू सी इट, but you can see visually also, but anyway the best way to do it is to weigh the whole wagon. You have to weigh it in a weigh bridge. That is the only way you can do it. Anybody else having a doubt? Anybody having doubts? Yeah, who is this? Jitendra, yes. Anything Jitendra, क्या है? After removal? नहीं, आप बात कर सकते हैं माइक में। आफ्टर रिमूवल वी कैन चेक। नो नहीं, वही वे ब्रिज को लेके वेमेंट करना, वे ब्रिज में ही वेमेंट करना, इन मोशन वे ब्रिज में वेमेंट करना,
either at the starting station or at the intermediate station और एट द डेस्टिनेशन स्टेशन. उसका बारे में मैं नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ. वेमेंट का बारे में नेक्स्ट क्लास में दे रहा हूँ. अभी वी विल टेक वन क्लास. Sir, what is the procedure for repayment? What is the क्या है? Anybody please tell me. Somebody was talking. Sir, if detect overloading, so how, what is the procedure for repayment? Yeah, repayment procedure we already told them. What is the procedure for repayment है वो पहले ही बता चुका है. अभी some time back we told you. What do you mean by procedure? That means where the wagons are reweighed. You mean that one? Yes sir. If जो detention होगा तो फिर उसके लिए responsible. No, see, detention, we are always looking at the safety. Safety of the rake is more important. है ना? We cannot think that because train is getting detained we cannot weigh. If at all we suspect overloading, it should be weighed at the next available weigh bridge. Simply because if at all the weighment is wrong, then the whole problem is safety. Na, see, we will see weighment of goods now. Page number 31, 11. Okay, okay. Thank you. अभी हम देखेंगे 11. So nobody is having any doubts? ओके अभी हम देखेंगे वेमेंट का बारे में. पेमेंट ऑफ गुड्स. ओके, वेयर हाउ गुड्स आर वेड. Payment of goods. At the time of submitting forwarding note, sender has to record the weight of the consignment. Consignment का weight कितना है वो कस्टमर ने बोलना है forwarding note में. The weight recorded by the consignor should be checked before booking the consignment on a weighing machine provided at every station. हर स्टेशन में वेब्रिज या वेमेंट का कुछ होना चाहिए, मगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेशन में कर सकता है. उसका बारे में हम देखेंगे आज. एटलीस्ट 50% ऑफ द रेक 5% ऑफ द रेक्स लोडेड विद स्टैंडर्ड बैग्स. यदि स्टैंडर्ड बैग्स सीमेंट राइस वो सब स्टैंडर्ड बैग्स है, ये सब स्टैंडर्ड बैग्स है, उसको वेमेंट करने के लिए ये 5% एटलीस्ट रेक का वेमेंट करना. मतलब ये जो 50 वैगन्स है एक रेक में, 50 into 5, 2.5 wagons. That means at least 3 wagons should be weighed. Weigh bridge. Wagons loaded with all other consignments should be weighed on a weigh bridge if available at the forwarding station. Originating station में weigh bridge है तो उधर weigh करना ज़रूरी है. If weigh bridge is not available, यहाँ जहाँ originating station में weigh bridge ही नहीं है, then the wagon should be marked for weighment at the associated weigh bridge, duly recording in the VG. एक नेक्स्ट दूसरा वेब्रिज स्टेशन जो है उसका नाम है एसोसिएट वेब्रिज. उसमें हम व्हीकल गाइडेंस, वीजी का मतलब व्हीकल गाइडेंस है, वो गार्ड का पास रहता है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पास रहता है. उसमें लिखना कि भाई ये रेक वेमेंट किया नहीं है, नेक्स्ट अवेलेबल वेब्रिज में उसको वेमेंट करो. वैगन्स विच आर टू बी वेड एन रूट should be labeled to destination but noted in the wagon summary to stop at the weighbridge station. यदि हम भूल गया तो मुश्किल है. इसके लिए ये जो वैगन समरी है उसमें लिखना कि ये रेक उधर खड़ना जहां वेब्रिज है. ओके, सेपरेट पॉकेट लेबल्स विथ रेड बैंड शुड बी यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ वेब्रिज. ये इंपॉर्टेंट है. ये कैसे पता होता है स्टेशंस को कि वेमेंट करना है? ये जो सील कार्ड है या ब्रैकेट लेबल है, पॉकेट लेबल जो बोलता है, उसमें एक रेड बैंड रहना ज़रूरी है.
The railway receipt should be prepared based on the payment details furnished by the weighbridge within 24 hours of loading. वहाँ जहाँ तक वो रीपेमेंट का पेमेंट का हुआ नहीं, आरआर जनरेट करना उत्तम नहीं है ना। Okay, then if RR cannot be prepared within 24 hours from the time of loading, DCM may permit another 24 hours for preparation of RR based on the weight furnished by the weighbridge. इसका मतलब है 24 घंटा में 24 आवर्स में वो जो weighbridge को नहीं पहुंचा, ये जो weighbridge है वो खराब है, उस टाइम एडिशनल 24 आवर्स, इसका मतलब 48 आवर्स भी सीनियर DCM दे सकता है. If the payment details are not received within 48 hours, RR should be prepared based on sender's weight. For bagged consignments of uniform size, weight can be arrived based on number of bags loaded and weight of individual bags. ये हम सबको पता है, यदि एक बैग का 10 किलो है और 10 बैग का 10 × 10 100 किलो केजी होगा, है ना, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकता है. ऑल पेमेंट मेड एट द weighbridge आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट रजिस्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वो कोर्ट केस के लिए जा सकता है. ओके, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन weighbridge, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर दिया चल रहा है, उसी स्टेशन में हम ये जो weighbridge रखना है वो बहुत ज़रूरी है. और नया weighbridge we are making new weighbridges. Okay, at every station we are having weighbridges. All traffic loaded from any terminal are required to be weighed at weighbridges. All loading points should be covered by weighbridges. वही जो हम बताया है. Okay, provision for in-motion weighbridge is mandatory in all new private sidings having outward traffic. ये जो प्राइवेट नया साइडिंग्स है उनमें मैंडेटरी है, मतलब जब खुल ओपन करता है उसको एक weighbridge होना ज़रूरी है, नहीं तो ओपन करता है नहीं करता. इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस शैल बी एंट्रस्टेड टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट. कौन देखेगा ये weighbridge? मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखेगा. Functioning of all weighbridges in the division should be reported in the daily position. And if out of order, DRM will have full powers to permit loading. यदि एक weighbridge खराब है तो DRM will have power to permit loading without payment. GM should be appraised if weighbridge is out of order for more than 3 months. यदि एक जोन में, किसी जोन में weighbridge नहीं खराब है 3 महीने के भी ज़्यादा, फिर उसका जनरल मैनेजर क्या है उसको बताना हम ज़रूरी है. In motion weighbridge is preferred to static weighbridge as it entails payment of rake in motion. In motion weighbridge में क्या होता है? In motion weighbridge में रेक चलते चलते पेमेंट हो जाएगा, तुरंत इमीडिएट हो जाएगा. PCOM of each railway will notify associate weighbridge. Associate weighbridge का मतलब क्या है? जब ओरिजिनेटिंग स्टेशन में weighbridge नहीं है, बाजू वाला जो weighbridge स्टेशन है उसको बोलता है associated weighbridge. Associated weighbridge है एक weighbridge जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से दूर है और वो नॉमिनेट किया है क्योंकि ओरिजिनेटिंग स्टेशन में weighbridge नहीं है. PCOM of each railway will notify alternate associate weighbridge where payment associate weighbridge is defective. जैसे में बताया गया है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में weighbridge होना नहीं है तो एक associate weighbridge PCOM ने नॉमिनेट करना. यदि ये भी खराब हुआ, क्या करना? PCOM में तीसरा स्टेशन का नाम निकालना है, उसको बोलता है अल्टरनेट एसोसिएट weighbridge. ओरिजिनेटिंग स्टेशन, एसोसिएट weighbridge, अल्टरनेट एसोसिएट weighbridge, ये 3 है, मन में रखो. एसोसिएट weighbridge है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में weighbridge नहीं है, उनको चुना गया है. अल्टरनेट एसोसिएट weighbridge ये होगा जो एसोसिएट weighbridge भी खराब हुआ तो कहाँ करना पेमेंट, उसका बारे में सोचने का. FOIS is integrated with weighbridge so that payment information only 10 minutes more is there. I have to come back after 4 or 5 minutes. Okay, we will come back. But right now we will continue here. FOIS is integrated with the payment information and directly transmitted from the weighbridge to TMS. TMS क्या होगा?
टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, जहां हमारा आरआर प्रिपेयर होगा और कमर्शियल का हाथ में होगा. सो फॉइस का ये वेब्रिज का साथ कंप्यूटर का द्वारा इंटीग्रेट हुआ है. मतलब जब भी वेवमेंट होगा ऑटोमेटिक फॉइस में आ जाता और आरआर में प्रिंट हो जाता. Loading point will prepare vehicle guidance in duplicate, duly indicating wagon number, carrying capacity, consignor, consignee, etc. and hand over to guard. Guard of the train will hand over one copy of the vehicle guidance to weighbridge clerk at the weighment point. Weighbridge clerk will weigh the wagons, duly indicating all the records of carrying capacity, tear, etc. and the result will be communicated to the loading point. देखो फर्क, देखो इधर फंडा. ये जो वेब्रिज का क्लर्क का काम है वो पूरा करके, यदि वो एसोसिएट वेब्रिज या अल्टरनेट एसोसिएट वेब्रिज है तो उधर ही वो पेनल्टी नहीं डाल सकता, ओरिजिनेटिंग स्टेशन को डालना है. Okay. Rake should not be stopped for short of electric in motion weighbridge. Sharp start off, that means the electronic weighbridge जहां है वहां ठीक से इलेक्ट्रॉनिक weighbridge का ऊपर ही उसको जाके बैठना. Rake will move at normal speed from loading point to first available weighbridge. हमें पहले ही बता चुका है कि जब वेमेंट ज़्यादा है स्लो जाना, मगर इधर हमारा नया रेलवे रूल आया कि ये जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में वेब्रिज नहीं है तो एसोसिएट वेब्रिज या अल्टरनेट एसोसिएट वेब्रिज को जाने तक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चल सकता है. इफ द रेक इज नॉट वेट ड्यू टू डिफेक्टिव वेब्रिज और एनी अदर रीजन, देन स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 किलोमीटर एज डिसाइडेड बाय द रेलवे फॉर द इज टू बी फॉलोड फ्रॉम द फर्स्ट वेब्रिज टू द नेक्स्ट अवेलेबल वेब्रिज. यदि फर्स्ट वेब्रिज तक नॉर्मल स्पीड, फर्स्ट वेब्रिज खराब है तो फर्स्ट वेब्रिज जो खराब है वहां से दूसरा वेब्रिज तक 40 किलोमीटर या जो रेलवे स्टिपुलेट करता है उतना स्पीड में जाना गाड़ी. आरआर शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द वेमेंट डिटेल्स फर्निश्ड बाय वेब्रिज विद इन 24 आवर्स. डीसीएम सीनेडीसीएम ऑफ द लोडिंग पॉइंट में हाउएवर परमिट इश्यू ऑफ आरआर नॉट लेटर देन 48 आवर्स. ये दोनों पहले ही हम पढ़ चुका है. If it is not possible, then RR should be prepared based on sender's weight. In case of continuous bank holidays, force majeure conditions, force majeure means unforeseen circumstances, act of God बोलता है उसको. कोविड एक force majeure condition है, act of God, जो किसी ने फोर्स ही नहीं किया. Nobody foresaw it, that is called force majeure. In the case of bank holidays, force majeure conditions, DRM may allow further extension of issue of RR up to next working day of the bank through return authority. DRM ये 48 आवर्स का भी ज़्यादा भी टाइम दे सकता है. If the weighbridge is not available, wagon should be marked for weighment at associate weighbridge. Wagons which are weighed at en route should be labeled to destination but noted in the wagon ceremony to stop at the weighbridge. Okay. So इधर देखो, punitive charges for overloading should be realized at originating point itself and should not be mentioned in the RR and indication in voice. Reweighment of such wagons at en route should normally not done. यदि एक पहले वेमेंट किया, दोबारा वेमेंट करने के लिए हमारा रेलवे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी परमिट नहीं करता. Okay, so whenever weighment is done in one of our rail bridges, second weighment is not at all permitted. Okay, only once we are permitting the weighment. Weighment of rakes, wagons at associate weighbridge, alternate weighbridge shall be treated as weighment at the forwarding station for all purposes. For all practical purposes, if the originating station is not having a weighbridge and the weighment is done at associate or alternate associate weighbridge, then for all practical purposes, data will be treated as if the originating station has weighed it. Anybody having any doubts? We will close this here and I will open a new session. Please join there for 10 or 15 minutes. We will take doubts. I am ending this session. Please join new session.
Okay, now we will take only doubts. Okay, so we have seen a lot of data today. We have seen weighbridge, repayment, and we have also seen punitive charges. So anybody is having any doubt in these three important topics, you can ask me. यदि किसी को शक है आप पूछ सकते हैं. Anybody having any doubts? I'll go one by one. Akshay Wankade, Danish, Praveen, Gautam, Jitendra, Pawan Rajhans, Praveen, Rajesh. So many people are there. Good. Satish. Oh, Selvi, good evening. You are there? Hello, Selvi. You are there? Veni Madhav Sharma. Oh, okay. I think our Rahul is not there. Sandhya is not there. JG is not there. Okay, anybody having any doubts? Or shall we close? किसी को कुछ डाउट है इसमें, इसका बारे में, वेब्रिज का बारे में, रिवेमेंट का बारे में? Nobody, no doubts. See, it is a very important chapter. Okay, so penalty charge is a very important chapter for you. I have sent the PDF in both the groups now. You can go through that, and if you have any doubts on this punitive charge, which is little confusing, दो तीन बार पढ़ा तो आपको मन में अच्छा आ जाएगा. You go through this one, and if you have any doubts, you can ask me on WhatsApp as usual, and we can clear it. Okay, so basically it is very easy to understand if you get the concept. Okay, shall we close the class? Hello? Anybody is having any doubts? You can ask me. Srinivaslu? No, sir. Selvi Abraham. Selvi, good evening. Danesh? Rajesh? Any doubt you have, you can ask me. Anybody is having any doubts? Shall we close the class? हेलो सर. Tell me. हेलो सर, ये प्यूनिटिव चार्जेस एप्लीकेबल कब होगा? एसोसिएट्स वेब्रिज पे भी तो लोड एडजस्ट कर सकता है पार्टी अगर डिडक्ट होता है ओवरलोडिंग. That is another chapter where we have got a new circular now. I will share that circular in WhatsApp. Where the overloading is detected, according to that your penalty is going. But what we have told that irrespective of the place where the overloading is detected, entire see here, ये point पढ़ो, ये point पढ़ो. Entire of the distance or capacity. Irrespective of point of detection. ऐसा कोई केस स्टडी है आपके पास सर अभी लेटेस्ट इधर? बहुत सारा. इसकी
बहुत बहुत सारा ऐसा केसेस है जहाँ रिवेमेंट किया है, और बहुत सारा कोर्ट केसेस भी चल रहा है। वेरी ऐसे इंपॉर्टेंट। कैसे? अगर ये सर एसोसिएट्स पे होता है उसके बाद आरआर बनाएगा, वो टाइम है 48 आवर उसके पास, तो ओवरलोडिंग तो कभी उसको मिलेगा ही नहीं। आरआर तो एक्चुअल वेट पे बनेगा जब इमोशन वे ब्रिज पे जाएगी। See, we have three places of weighment. First is originating station. Second is Yes, associate sir. weighbridge. Third is alternate associate weighbridge. Fourth, Yes, destination sir. station. ये कहीं भी हम वेमेंट कर सकता। इस चार जगह भी वेमेंट का होना नहीं, संभावना नहीं है, वेब्रिज नहीं है, तो सेट टू कंटेन ही करना, कुछ भी कर सकता नहीं। वो उस टाइम हम कस्टमर का ऊपर भरोसा रखना है। सेट टू कंटेन। Then we have to give set to contain, and obviously it means that we have to believe the customer. ओके ओके, ऐसा। क्योंकि जब आरआर बनेगा तो एक्चुअल वेट कैप्चर ये होता ही है उसमें। उसके बाद एक्चुअल वेट नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी जो ई मोशन वे ब्रिज पे जो जाएगी, डायरेक्ट ईएमएस कनेक्टेड है अभी सब। आगे है सब करेक्ट। वॉइस। अभी पूरा वही हम पढ़ा ना। सो वेब्रिज का जो कंप्यूटर है वो हमारा टीएमएस का साथ कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा, और कितना एक एक वैगन में कितना ओवरवेट है उसको देख के उसका मुताबिक हम फाइन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता फॉइस में। इसके बाद भी ओवरलोडिंग की पॉसिबिलिटी क्या है सर, कैसे हो सकता है? नहीं, उसका बात कैसा हो सकता है? हम बोल चुका ना, पेमेंट कैन बी डन ओनली, विल बी डन ओनली वंस। कब? एक बार उसके बाद अगर एक बार वेट हो गई, आरआर बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स मोशन ब्रिज पे जाके, फिर उसके बाद क्या पार्टी लोड कर सकती है? नहीं करे, नहीं कर सकता। और दोबारा रिवेमेंट करने का भी हम पार्टी का रिक्वेस्ट लेता नहीं रिवेमेंट करने के लिए। अगर रिवेमेंट में हो भी गया तो punitive charges के लिए No. See, once a wagon is weighed in the weigh bridge, reweightment is not permitted unless the seal cord is cut or some we suspect। वो हम पढ़ा ना पहले 10-15 मिनट का पीछे। See, yes we read no reweightment. You want to go through that again? I can show you where that is। आपका किताब आप भेजा है, आप पढ़ सकता है। ये रिवेमेंट का 19 चैप्टर नंबर 19 में है, देखो। हाँ 19 यस। हाँ, है ना? Yes. इसमें है। हाँ, यस। थैंक यू सर। इधर है देखो, रिवेमेंट स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। कोई ऐसा केस है सर जो मिला, उसको कैसे मिलता ओवरलोडिंग इतना होने के बाद? इतना नहीं, दोबारा पेमेंट करने का सवाल ही नहीं। तब ये कब मिलेगा ओवरलोडिंग, हमें कब मिलेगी? ये हमारा क्वेश्चन ये है, हम कैसे पता करेंगे कि ओवरलोडिंग है? एक बार आरआर बन गई, इमोशन वे ब्रिज जहीं भी वेट हो, ऑर्डिनेटिंग पे हो, एसोसिएट्स पे हो, अल्टरनेट पे हो, उसके बाद गाड़ी निकल गई, फिर हमें कैसे पता गाड़ी निकलने के बाद रिवेमेंट दोबारा होता है जब हमको हमारा वेब्रिज में ही शक आता है और रेलवे ऑर्डर करता है पेमेंट को दोबारा। कस्टमर पूछा तो हम मांगता नहीं। जब रेलवे फिर कराएगी, रेलवे को पता चले, ऐसी पॉसिबिलिटी है बनने के बाद फिर लोडिंग करता है। बहुत रेयर केसेस में हो सकता है, जब ओरिजिनेटिंग स्टेशन में या एसोसिएट वे ब्रिज में या अल्टरनेट एसोसिएट वे ब्रिज में वे किया, और उसका बाद यदि विजिलेंस को या कैसे भी पता हुआ कि ये तीनों वे ब्रिज में भी खराब है और आरआर जो बन गया है वो ठीक नहीं है, उस टाइम रेलवे ऑर्डर कर सकता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर कर सकता है दोबारा पेमेंट करने को। नॉट पार्टी पार्टी रिक्वेस्ट करने का एक ही चांस है जब सील्स टूटा गया है, टैंपरिंग हुआ है। Okay, anybody else? Any other person having any doubts? सर यदि इन रूट वे ब्रिज में हेलो, इन रूट वे ब्रिज पे
इन रूट वे ब्रिज में अगर ओवरलोड पाया जाता है हम्म, और उस वे ब्रिज पर पार्टी जो है किसी कारण से नहीं जा पाता है, तो लोड एडजस्टमेंट कौन करेगा? load all load adjustment is done by the party only. Party should send his men and material for load adjustment. यदि Sir, रेलवे ने उसी- करता यदि रेलवे ने करता लोड एडजस्टमेंट, उसको हम चार्जेस पार्टी से लेना पड़ेगा। और कहाँ रखेगा उसका माल कहाँ रखेगा? जो ओवरवेट है, जैसे सर कंसाइनमेंट जो है बुक हुआ है दिल्ली टू हावड़ा सपोज, और इन रूट जो है वो सपोज पटना में जो है इन वे ब्रिज है, हाँ तो पार्टी को तो रेलवे ने इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, किस वे ब्रिज पार्टी पर- को रेलवे किस वे ब्रिज- बिना 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 इन्फॉर्म करके कैसे होता है? कंसाइनर और कंसाइनी को दोनों को इन्फॉर्म करता है कि आपका जो रेक भेजा है उसमें पटना में जो हम पेमेंट किया है वहाँ पता हुआ कि वो ओवरवेट है। गाड़ी कैसे चलता है? गाड़ी चलता नहीं, करता है कहाँ तक, जहाँ तक पार्टी आता है उसको डिटेंशन चार्ज एक है वो लेता है। ये गाड़ी डिटेन होता ना, उसको एक डिटेंशन चार्ज भी लेता है। आपको मालूम है या नहीं डिटेंशन चार्ज के बारे में? हाँ 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 सो डिटेंशन चार्ज लेता है। ठीक है। ये जो डिटेंशन चार्ज लेता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अभी आपको अभी व्हाट्सएप में भेजता हूँ, देखो उसको पढ़ लो डिटेंशन चार्ज के बारे में। डिटेंशन चार्ज कब लेता है, कितना लेता है, वो दोनों पीडीएफ में है। अभी भेज दिया आपका जो फोन में, अभी आ गया अंदर, आया? आया तो है। वेल वैगन। हाँ, पीसी डिटेंशन चार्जेस जो है वो आप लेना पार्टी से। Okay, any doubts or shall we close? हाँ सर। Yes, please Sir? tell me. सर एक्चुअली पार्टी को 58 BCNHL वैगन सप्लाई किया सर। एक 58 वैगन्स BCNHL सप्लाई किया। ओके, हाँ, उसमें 56 लोड किया। 56 दो वैगन क्या किया? 56 लोड, 2 वैगन एम्प्टी है। नहीं, दो वैगन एम्प्टी को मतलब सी वी आर whether we are charging at wagon load rate or train load rate classification. ट्रेन लोड है सर। सर हाँ, when train payment load के बारे में classification सर। then नहीं Actually- एक मिनट सुन लो। 58 वैगन्स पूछा, सिर्फ एक वैगन में लोड किया, बाकी 58 वैगन से रिक्वेस्ट किया, सिर्फ एक वैगन लोड किया, 57 खाली हुआ तो भी हम ट्रेन लोड क्लासिफिकेशन का चार्जेबल वेट पकड़ के अपन करना है। हाँ, वो नहीं हाँ, सर। हाँ। एक्चुअली पेमेंट हो गया सर वो रेक को। वो 2 एम्प्टी वैगन का टायर वेट है, उससे ज्यादा 4 टन एक्स्ट्रा आया एम्प्टी वैगन का पेमेंट। हाँ, वो चीज जो हमारा रेलवे में बहुत सारा चल रहा है, क्योंकि हमारा वे ब्रिजेस ठीक नहीं है, और जो पहले टेयर वेट स्टेंसिल करता है ना, वहां ही हम गलती करता। स्टेंसिल्ड टेयर वेट ही गलती है हमारा बहुत सारा वैगन में, एसएलआर में, वीपीएच में, सब में। पार्टी डिमांड किया सर रीपेमेंट का। करेक्ट, आई एग्री। वो सब कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ओके ओके। कोर्ट में केसेस फिर चल वो रहे हैं टाइम में उसका। पेमेंट वो पार्टी क्या बोल रहे हैं ना, देखो सुन लो, पार्टी क्या बोल रहे हैं, वैगन आपका, वेब्रिज आपका, सब आपका। हम कैसे हाउ कैन वी बिलीव व्हाट यू आर सेइंग? हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस? है ना? అవును సార్ అంతే కదా. Okay, shall we close the class? Any other doubts, or I'll close the class? Selvi, are you there? Are you hearing? Yes, sir, I'm here only. I'm hearing.
So how are you? What's up? Yeah, I'm good, sir. Did you understand what we taught today? Do you have any doubts? I have little doubts, but like I would sound funny. I No, don't know no, no, why. no, 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 no. That's what we are doing wrong. We are embarrassed to ask questions. We get embarrassed that क्या है ऐसा पूछ रहा हूँ, बाकी सब बहुत इंटेलिजेंट है, उन सबको मालूम है, हम पूछ रहे हैं कि हाथ में कितना उंगली होगा. आप पूछ सकते हैं एक आदमी का हाथ में कितनी उंगली होगा, आप भी पूछ सकते हैं. वो दैट्स नॉट सिली. इट इज ignorance is there everywhere. Okay, so everybody is ignorant of something. It is good that you ask a question rather than keep it bottled up and not ask. You can ask. Please ask. Uh, yeah, no problem, sir. I have to go through this because I haven't read it. So I want to go through it, and if I have any doubt, I'll talk to you, sir. Yeah, But please. now, like yeah. No. At this moment, I'm with really half knowledge about it. So No, that is okay. See, I'll tell you, सबको ग्रुप में जो अभी सुन रहे हैं उन सबको बोल रहा हूँ, आप मत सोचिए कि ये जो क्वेश्चन सवाल आप पूछ रहे हैं वो बहुत सिल्ली है, या अरे यार सिर्फ मुझे मालूम नहीं है और बाकी सबका मालूम है, या कुछ वैसा मत सोचिए. क्योंकि हम सब भगवान नहीं है. हम सब पूरा का पूरा नॉलेज किसी को भी नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, आपको भी नहीं होता, है ना. ये सब लर्निंग का प्रोसेस है. आप जो सवाल है कितना भी सिल्ली हो या कितना भी डाउन टू अर्थ हो, आप पूछ सकते हैं. और जब आप सवाल पूछेगा ही हमको पता होता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है एक सवाल, है ना. आप ये मत सोचिए कि कोई ने कुछ सोचेगा. कोई ने कुछ सोचा तो सोचने दो. आपको खाना अच्छा पकाने के लिए आता है, आपको चपाती बहुत अच्छा बनता है और सब्जी अच्छा बनता है, मगर गुड्स का नॉलेज नहीं है. वो जो गुड्स का महाराज है उसको बोलो सब्जी करने के लिए, उसको शक्कर डालता है, नमक का बदल शक्कर डाल के आपका देता है. समझ समझ में आया. yeah. So one may be good in goods, one may be good in parcels, one may be king of claims working, one may be very good in court cases, one may be very good in vigilance, one may be very good in auditing. So it does not mean that you should feel ashamed. Okay, Okay. don't feel embarrassed or ashamed in my class, because I No, myself no. I will surely ask you. But then, like now, I want to know certain things about this. I want to read it properly, and then I'll come with my doubts. yeah, I you have have a many. bad cold I think. Anyway, take care. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you. चलो टेक केयर, गुड नाइट सबको. I could not catch you on WhatsApp, Sylvie. That's why I thought, okay, fine, long time. Anyways, take care, I all was of not you. well, sir. I was down with a viral fever and Yeah, cold. yeah. We are on the same boat. We are on the same boat. Yeah. Don't worry. Okay. Chalo, take care, all of you. Any Yeah. doubts, you can ping You me on too. WhatsApp anytime. Bye. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye.